मुल्क में हालिया सैलाब और गैर मामूली बारिशों ने तबाही के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बरह रास्त मुतासर हुए हैं और ये आदादोशुमार मोहतात अंदाजे के तहत बताए जा रहे हैं, यानी असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1136 तक पहुंच गई है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 75 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं। 110 अजला सैलाब की तबाहकारियां देख चुके हैं। मुल्क भर की अब तक 10,51,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है। 7,35,000 मवेशी भी सैलाब का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और सैलाब के दौरान अब तक 162 पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 3,471 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। सिंध और बलूचिस्तान में इस साल मानसून में बारिश का 60 साला रिकॉर्ड टूट किया और इस मरतबा मानसून के आगाज से अभी तक सिंध में मामूल से 522% और बलूचिस्तान में 469% जायद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के सबब बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। सिर्फ 20% इलाके में लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल हो सकी है। इन हालात में आज पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का ऐलान किया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $16 करोड़ की हंगामी इमदाद की अपील की गई, जिससे खुराक, पानी, सफाई और सेहत और तालीम की सहूलियात का बंदोबस्त किया जा सकेगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने सेशन को ब्रीफ भी किया और इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि सैलाब की मुतासरीन के लिए पाकिस्तान को इमदाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीलियों से के शदीद असरात का सामना भी करना पड़ रहा है। Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. It requires the world's collective and prioritized attention. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. The government of Pakistan has asked for the international community's help. Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. Let us all step up in solidarity and support to the people of Pakistan in their hour of need. पाकिस्तान में जून से जारी बारिशों और सैलाब के बायस 2010 के हौलनाक सैलाब से भी ज़्यादा तबाहकारी हुई और आज वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के अमल में 5 बरस और $10 अरब दरकार होंगी। The damage is of unimaginable proportions. Heavy waters in the country have swept away bridges and roads, schools and hospitals, railway tracks, critical telecommunication infrastructure, cutting off communities. Almost half of the country's cotton crop has been washed away, and vegetable, fruit and rice fields have sustained significant damage, posing serious challenges to the food security. There is growing concern about the looming cost of building back from this disaster, as the preliminary estimates are higher than $10 billion. The government is looking forward for assistance from aid agencies, friendly countries and international donors. इस मौके पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज जो तबाही हम देख रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, जिसका पाकिस्तान बरह रास्त शिकार रहा है। This disaster is colossal in its scale and devastation. It is feared that the scale will exceed that of the 2010 mega floods or super floods. 72 districts have been declared calamity hit. Over 33 million people have been affected. More than 1,100, including women and children, have lost their lives, and many more are injured. For us, this is no less than a national emergency. It requires urgent cooperation and support from the international community. For that, we are launching the UN Flash Appeal for Pakistan Flood Response Plan 2022 today. I would like to urge the international community to give its full backing to the Flash Appeal to help the people of Pakistan most in need. I encourage you to contribute generously towards meeting the funding requirements
of this response plan and going beyond. दूसरी जानिब पाक फौज भी मुतासरा इलाकों में खिदमत अंजाम दे रही है और इमदादी सामान पहुँचा रही है। इसके अलावा मुतासरा अजला में 50 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परसों सिंध के शहर खैरपुर का दौरा किया था, जबकि आज उन्होंने सवात का दौरा किया, जहां उन्होंने कांजू कैंट में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इस मौके पर आर्मी चीफ ने मीडिया के नुमाइंदों से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। उधर बारिशों और सैलाब से सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां 16,70,000 अफराद बेघर हो चुके हैं और 400 से ज़ायद अफराद सैलाब का शिकार हो चुके हैं। कल PDMA ने मेहड़, खैरपुर नाथनशाह और जूही शहर के दही और शहरी आबादी को सैलाब के खतरे के पेश नज़र फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की है। गुज़िश्ता शब दादू से कई ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। जुलाई के आगाज़ से अब तक सिंध में 688 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि मामूल के मुताबिक यहाँ इस अरसे में 113 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी पिछले 2 महीनों में सिंध में औसत 508% ज़्यादा बारिश हो चुकी है और रिकॉर्ड बारिश एक तरफ, मगर सिंध हुकूमत की नाअहली ने भी कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। सिंध असम्बली के स्पीकर और कायम मुकाम गवर्नर सिराज दुर्रानी तो इन तबाहकारियों का जिम्मेदार आवाम को दे चुके हैं, जिनको कहना यह है कि ये गुनाहों की सज़ा मिली है। मगर उनके अपने इंतखाबी हल्के का क्या हाल है, आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज अपना जवाब जमा कराया है। इसकी तफसीलात क्या हैं आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अपना जवाब जमा करा दिया। अपने जवाब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शो कॉज नोटिस पर माफ़ी मांगने का तो नहीं कहा, अलबत्ता खातून जज से मुताल्लिक़ अपने अल्फाज वापस लेने की पेशकश ज़रूर की है। इमरान खान की जानिब से जवाब एडवोकेट हामिद खान ने अदालत में जमा कराया, जिसमें कहा गया कि इमरान खान जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान के अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वो उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। इमरान खान आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। अपने जवाब में PTI चेयरमैन ने यह भी लिखा कि हाई कोर्ट को तौहीन अदालत की एक कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार ही नहीं था। इसके अलावा जवाब में कहा गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि मामला टी रूम में ज़ेर बहस आया। तमाम साथी जजों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इत्तेफाक किया। ये बहुत संजीदा नौयत के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। गुजारिश है कि मामले पर पहले से राय बनाने वाले जज साहिबान केस से अलग होने पर गौर करें। इससे कबल तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इमरान खान खातून जज को धमकाने से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत के केस में माफ़ी नहीं मांगेंगे। इमरान खान अपोलोजाइज नहीं करने लगे इस केस में। व्हाई शुड ही? अच्छा, आई बिलीव दैट सबसे पहले अगर मैं फ्रैंकली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद होता तो आई वुड हैव टेंडर्ड अपॉलॉजी कि मैंने ओवरलुक कर दिया है ये टॉर्चर को, मुझे बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए था। संगीन इल्ज़ाम है टॉर्चर का और सर आप पे कंटेम्प्ट लगती थी इस बात पे जो आप कह रहे हैं। कंटेम्प्ट वाली इसमें कौन सी बात? आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस को सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये नहीं किया। फैसला उनका है ना, कंटेस्ट करेंगे, ओवरलुक हो जाता है, कंटेस्ट करेंगे डिसीजन को इमरान साहब। हाँ क्यों नहीं। और इस बारे में कोई वो नहीं है कि कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं होनी इसके ऊपर, ये तय हो गया। अपॉलॉजी होनी नहीं चाहिए। इट विल बी वेरी आपको पता है इतना वो इसको सीरियसली लिया, पूरा बेंच बैठ रहा है उसके ऊपर इस्लाम में, कोई 1-2 जज फैसला नहीं करने जा रहे। मुझे और अफसोस है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा था कि क्या जजेस को इस तरह धमकियाँ दी जा सकती हैं जिस तरह दी गई। बहुत बोझल दिल से कह रहा हूँ कि अदलिया को धमकियाँ देने की उम्मीद नहीं थी। कहा गया जज को छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना था कि ये अल्फाज मेरे बारे में कहे जाते तो कोई और बात थी, लेकिन एक खातून जज को धमकियां दी गईं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की केस के हवाले से रिमार्क्स दिए कि टॉर्चर नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन खातून जज को धमकियां देना इससे भी ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी अमल है। 20 अगस्त को इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को धमकाया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन
औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच कायम किया था। अब इस बेंच की तादाद 5 कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इस बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद भी कल बेंच का हिस्सा होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, माहिर आईन कानून। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, आज जवाब तो इमरान खान साहब ने जमा करा दिया और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर अल्फाज नामुनासिब हैं तो वो उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। तमाम ही माहिरीन आईन व कानून ये बात कहते रहे कि इस तरह के केसेस में माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इमरान खान को भी उनका यही मशवरा था, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी तौसी आपकी करता चलूँ आपकी इजाज़त से, कि ऐसे नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपने जवाब में, कम से कम मेरी नॉलेज में ऐसे नहीं है, जिस तरह इसकी रिपोर्टिंग भी हुई, कि इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये लिखा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने दीगर बहुत सी चीज़ें लिखी हैं और माफ़ी के लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया। और ये कहा है कि मैं अब अगर मेरे अल्फाज इनअप्रोप्रिएट थे तो मैं उनको वापस लेता हूँ। मेरे दिल में जुडिशरी की बड़ी इज़्ज़त है, मैं उनकी तकरीम करता हूँ, लेकिन माफ़ी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही ये कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगता। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्योंकि मैटर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी कंटेम्प्ट यानी कि उनकी सबॉर्डिनेट कंटेम्प्ट का ये मैटर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डिस्पोजल की रेपुटेशन है, जो जूरिस्प्रूडेंस की रेपुटेशन है, वो पाकिस्तान की किसी भी हाई कोर्ट से कम नहीं, बल्कि सबसे शायद बेहतर ही हो या बहुत उनसे बेहतर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी क्रेडिबिलिटी है अपनी जूरिस्प्रूडेंस में। और मेरा ये ख्याल है कि इस मैटर को ये जब इमरान खान साहब का सामने आया तो शायद मैं नहीं कह सकता कि वो क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन शायद वो इमरान खान साहब के लार्जर कॉन्डक्ट को देखें जिसमें वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं और जो लफ्ज़ है अपॉलजी का, शायद वो उसको इमरान खान साहब के कॉन्डक्ट को एक अपॉलजी समझें। लेकिन उनकी सवाबदीद है, बेंच की ये सवाबदीद है कि वो कहें कि आप क्लियरली बताएं, इस तरह गोल मोल बात ना करें, आप क्लियरली बताएं कि क्या आप अपॉलजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि अपॉलजी करने का मकसद है कि आपने गिल्ट तस्लीम कर लिया और अब आप उसकी एक माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है कि बेंच क्लैरिफाई करने की इस पोजीशन को कोशिश करे इससे पहले कि वो अपना फैसला करे कि क्या अपॉलजी है और एक्सेप्ट करके आगे चले जाना है या अपॉलजी नहीं है और ट्रायल की तरफ जाना है। ये सवाबदीद बेंच की रहेगी। तो माहिर कानून की हैसियत से बैरिस्टर साहब, आपका क्या मशवरा होगा? इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस पर साफ अल्फाज में, वाशिगाफ अल्फाज में, या इसे कॉन्टेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में माफ़ी और ख़ास तौर पे अदालत से माफ़ी मांग के कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अदालत हमारे रियासत का वो सतून है जिसके सामने ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर सरबखम खड़ा होता है और अगर वो अल्लाह देता हो तो वो भी सरबखम खड़ा होता है। ये अदालत का कम से कम हमारे रियासत के कानून में तसव्वुर ये है कि उसके सामने हुक्मरान से लेके सबसे पस्त या सबसे जिसके पास वसाइल ना हो, गरीब आदमी भी अदालत के सामने जब जाता है तो बराबर होता है और सब जो हैं वो सरेखम तस्लीम करके खड़े होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के सामने अपॉलजी कर लेने से इमरान खान साहब की पॉलिटिकल या नैरेटिव को कोई ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। अगर किसी से भी गलती हो जाए, अगर मैं आपसे बात करते हुए कोई ऐसी बात कर दूं जिसमें अदालत को अपनी तौहीन महसूस हो तो हमें उसमें अपॉलोजाइज कर लेना चाहिए। इदारों का एहतराम यही कहता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ये कि उन्होंने अपॉलजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया या ये वो अपने कॉन्डक्ट से दिखाना चाह रहे हैं? ये बात तो अब अदालत और इमरान खान साहब के दरमियान है। मैं एक बात मज़ीद वाज़े करता चलूँ कि क्योंकि कंटेम्प्ट की बात हो रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये कंसिस्टेंट जूरिस्प्रूडेंस रही है, दीगर हाई कोर्ट्स की भी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी, कि अदालतें कंटेम्प्ट इशू करते हुए किसी पर्सनल जज के बारे में या किसी पर्सनल जज की प्रेफरेंसेस के ऊपर नहीं चलती। जब कंटेम्प्ट होती है तो वो अदालत एज एन इंस्टीट्यूशन और किसी फरीक के दरमियान में होती है। यहाँ पे भी कंटेम्प्ट किसी एक जज ने, दो ने, किसी एक का, अगर किसी का ख्याल हो कि कोई किसी जज की सिंपथीज हैं किसी एक मौक़िफ़ से, तो ये इसके अंदर फैक्टर इन नहीं करती इस वजह से कि, या नहीं करनी चाहिए इस वजह से कि कंटेम्प्ट अदालत एज एन इंस्टीट्यूशन की होती है, किसी इंडिविजुअल जज की नहीं होती। और ये हमारा एक लिबरल मौक़िफ़ रहा है
हमारी जुरिस्प्रूडेंस के अंदर भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटेम्प्ट के ऊपर। तो मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब अपने कॉन्डक्ट से, अल्फाज से अदालत को वाज़ेह करें कि अदालत की वो एहतराम करते हैं, वो उनकी तौहीन करने का उनका कभी भी इरादा नहीं था, ना आइंदा होगा। वो एक जजमेंट पे बात कर रहे थे, रिमांड की जजमेंट पे, और अगर उनके अल्फाज गलत हैं तो उसके लिए माजरत खाएं। अगर वो इस तरह की बात करें तो मेरा ख्याल है कि अदालत हमेशा की तरह एक इसके ऊपर मैग्नानिमस व्यू लेगी, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन की ये इंस्टीट्यूशन के वकार की बात है किसी जज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साद रसूल, माहिर आईन कानून, हमारे साथ मौजूद। यहाँ पर एक ब्रेक जिस दौरान आप हेडलाइंस देख सकेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल हो गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तौसीक और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी मिलने के बाद मईशत और कारोबार की जान में जान आ गई है। किस्त की ये रकम इसी हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन अहम बात यह है कि IMF ने डू मोर का मुतालबा भी किया है, जिसकी वजह से महंगाई का नया तूफान और टैक्सेस की एक सुनामी बर्पा होने वाली है। पाकिस्तान के 7वें और 8वें इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी से मुताल्लिक़ IMF के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे और टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। कारोबार करने का माहौल बेहतर बनाकर पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इक़दाम है। IMF एलामिये में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और एलामिये में कहा गया कि माली साल 2023 के मंजूर शुदा बजट पर साबित कदमी के साथ अमल दरामद पाकिस्तान को फौरी उसकी तरजीह होनी चाहिए, पाकिस्तान को उस पर अमल करना चाहिए। हौसला अफजा बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी कर दी है, जबकि इजाफी 50 करोड़ डॉलर्स भी उसकी भी मंजूरी दे दी है। इस इजाफे के बाद बेल आउट पैकेज की रकम 6.5 अरब डॉलर्स हो जाएगी। इस हफ्ते 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को IMF से अब तक मिलने वाला कर्जा 4 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएगा। IMF प्रोग्राम की बहाली और इससे कबल दोस्त ममालिक की जानिब से 4 अरब डॉलर्स की सपोर्ट के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कदरे इस्तेहकाम आ रहा है। बज़ाहिर सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है और IMF के बाद अब दूसरा आलमी मालियाती इदारा जिसे वर्ल्ड बैंक, यानी दूसरे आलमी मालियाती जो इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दूसरे इदारों की जानिब से पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग का रास्ता भी अब खुल जाएगा। कर्ज़ों की अदायगी में आसानी भी आ जाएगी और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कई बार इस अज़म का इजहार भी कर चुके हैं। IMF आएगा, फिर वर्ल्ड बैंक आएगा, फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक आएगा। अब तो वो चाइना का एक बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसने भी कह दिया कि वर्ल्ड बैंक पैसे देगा तो देगा। दोस्त ममालिक भी जो थे वो भी आपको ये चीज़ देख रहे थे और इनकरेज कर रहे थे, बहुत पोलाइटली इनकरेज कर रहे थे कि IMF से डील कर लो ताकि डिफ़ॉल्ट के रिस्क से बच जाओ, क्योंकि नोबडी लाइक्स टू पुट मनी इन समथिंग वेंचर। बहरहाल आज रुपए की कदर में दोबारा रिकवरी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 80 पैसे सस्ता होकर 220 रुपये 12 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 222 रुपये का हो गया है। अहम बात यह है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में जिस ज़बरदस्त इजाफे और डॉलर यकमुश्त कई रुपए सस्ता होने की तवक्को की जा रही थी, इंटरबैंक रेट्स में इस नौइयत का भौचाल नहीं आया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफे के इम्कानात के बरक्स रिस्पॉन्स की वजह से शायद आज स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 542 पॉइंट का इजाफा हुआ, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 309 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुई। IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद माशी चैलेंजेस का तशवीशनाक पहलू सैलाब से होने वाली तबाही है, क्योंकि ज़रूरी नुकसानात के बाद अब ग़िज़ाई अजनास की दरामद हमारे इम्पोर्ट बिल पर बोझ डालेंगी। करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा और बिल आखिर पाकिस्तानी रुपया
एक बार फिर दबाव में आने के खदशात बढ़ जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक तवील अरसे के बाद बड़ा मुश्किल मुआहदा, तारीख़ का शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल मुआहदा IMF और पाकिस्तान का अब हो गया। डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो 6 दिन के बाकी बचे थे हमारे पास। बहरहाल अब जो ये किस्त मिल जाएगी, मुआहदा हो गया है, तो मईशत की बहाली पे आप इसका क्या असर देखेंगे? हम क्या देखेंगे फौरी तौर पर तब्दीलियाँ? बहुत शुक्रिया मसूद साहब, ये बहुत मुस्बत पेशरफ्त है और इससे मईशत के अंदर आसानियाँ पैदा होंगी। आपने देखा 2-3 जो फौरी तौर पे मार्केट के रद्द अमल सामने आए हैं वो बड़े मुस्बत हैं। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक हैजानी कैफियत जो जुलाई में थी उस तरह की पैदा हो रही थी, और आज इस खबर ने 8 रुपये ओपन मार्केट में और 2 रुपये के करीब इंटरबैंक में बेहतरी आई है रुपये के अंदर बमुकाबले डॉलर। ये अच्छी है, मुस्बत बात है। लेकिन जैसा कि आपने अपने इफ्तिताही कलमात में भी ये बात रखी कि इस वक्त लोगों की नज़र है कि सैलाब की तबाहकारियों पर, और वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके मुतालिक लोगों का गुमान है कि शायद 2010 के जो सैलाब थे उनसे भी बड़ी वाहिद तबाही आई है। हमारी जो 1100 अफराद लुक़मा अजल बन गए, उसके अलावा 1 मिलियन घरों की तबाही हो गई, 1 मिलियन लाइव स्टॉक मर चुका है, और कोई 4 मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। एक स्टैंडिंग क्रॉप जो कॉटन की है उसका एक बड़ा हिस्सा तल्फ हो गया है। तो ये इससे फिर हमने हमारे जो ज़ख़ीरे थे गंदम के वो भी मुतासिर हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखें तो अब लोगों को ये ख़दशात पैदा हो रहे हैं कि जनाब ये फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, कॉटन की अगर क्रॉप नहीं मिली तो आपको ज़्यादा दरामदात करनी पड़ेंगी, और उसमें भी जो है आपको अपना ये जो कलील और मुख्तसर ज़र मुबादला है उससे ख़र्च करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के लिए अगर गंदम के ज़ख़ीरे मुतासिर हुए हैं वो भी आपको मंगाना पड़ेंगे। फिर ये कि आप अभी फ़ैसला भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे कि टैक्सेस वगैरह जो हैं वो हटा दिए। ये जो सब्ज़ियां हैं वो 2 ममालिक के पास से तफसील से बात भी करता हूँ, लेकिन एक तासुर ये था कि जैसे ही IMF मुआहदा होगा और हमें पहली किस्त जैसे ही मिलने की बात की जाएगी या पहली किस्त आ रही होगी तो स्टॉक मार्केट हो, हमारा एक्सचेंज रेट पर हो, उस पर एक्सचेंज रेट पर हमारा दबाव कम होगा, मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को नहीं मिला। स्टॉक मार्केट जो है वो शुरू में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्लोज़ हुई तो मंदी पे क्लोज़ हुई। इसकी क्या वजह है? ठीक है, ये सैलाब वगैरह ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट में पैसा आ रहा है ना। देखिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल जब ये मुआहदा मंजूर हुआ है उसी वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ लोगों के सामने आ गई, तो वो अंदेशे भी बढ़ने लगे। और देखिए, ये अगर इतनी बेहतरी भी हुई है फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो इसे हमें गनीमत समझना चाहिए, क्योंकि ये तो तेज़ी से उस 240 रुपये की तरफ जो है वो गामज़न थी। तो अब ये कमी आई है, और जब डॉलर आ भी जाएंगे और आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक और ADB से भी पैसे आएंगे, तो हमारा इस वक्त जो फॉरेक्स का कंस्ट्रेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमें आसानी जो है मैसर आएगी और उसके भी असरात पड़ेंगे। लेकिन साथ ही ये जो सैलाब की सूरत हाल है वो लोगों को उनके सेंटिमेंट्स को मुतासिर कर रही है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये तो सबसे बड़ी तबाही है और इसके अभी सही अंदाजे नहीं हैं। जब इसका असेसमेंट होगा तो फिर लोगों को और मालूम होगा कि इस पे तो बहुत ख़र्चा आएगा और हम शायद अपने तई इस सब को बर्दाश्त न कर सकें। आज आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया से भी अपील की है कि फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो मदद की जाए पाकिस्तान की। तो ये सूरत हाल जो है ये सिर्फ़ एक साल की बात नहीं है,
ये तो कई साल लगेंगे इस एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये तबाही हमारे सामने हम इसको देख रहे हैं और इसके इब्तिदाई जो आदाद शुमार हैं वही खासे खौफनाक और दिल दहला देने वाले हैं। तो अब जो IMF की कड़ी शराइत हैं वो हम इस सूरत हाल में कैसे उनको मीट करेंगे जब हमारे पर दबाव होगा, हमारे मुल्क की दौलत तबाह हो चुकी है, हमारे खेत फसलें तबाह हुई हैं, हमारे स्टॉक्स तबाह हुए हैं, तो क्या IMF से हम इस पर नरमी पे बात करें और IMF जो है वो अब नरमी देने के लिए तैयार भी होगा? कैसी सूरत हाल है? देखिए, क्योंकि हमने बहुत काम किया है इस एक ट्रांच के, मैं समझता हूँ मुल्क की तारीख़ की सबसे मुश्किल तरीन ट्रांच है जो हमने बिलाखिर हासिल की है और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दर हकीकत आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके हुसूल में, क्योंकि इसकी जो सारी सख्ती है वो तो आम आदमी ने बर्दाश्त की है। पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी और दीगर जो कीमतों का वबाल आया हुआ है वो आपके सामने है। तो अब ये जो तकलीफ़ है इसमें हम तवक्को रखते हैं कि IMF इसका ख्याल रखेगा और इस सिलसिले में जो अखराजात होंगे उनको वो जिस तरह से कोविड में भी उसने आपको फिस्कल स्पेस दी थी, ये भी तबाही ऐसी है जिसके अंदर उसके जो आम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें वो इसका लिहाज रखता है। 2010 के अंदर भी उसने काफ़ी हमको स्पेस दी थी, गो के प्रोग्राम उस वक़्त तक टूट चुका था, लेकिन उन्होंने फ्लड्स में भी हमारी खुसूसी इमदाद की और फिर 2005 के जो ज़लज़ला आया था उसमें भी उन्होंने हमारी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि हम उनसे वो भी लिहाज रखेंगे और हमें भी खुसूसन उनसे दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि ये हमारे हालात हैं, इनमें आप देखिए। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने का, तो उसमें अब IMF की तरफ से तो जो अब शायद 20 रुपए का अमल रह गया है अपने पेट्रोलियम लेवी का, बाकी तो अगर उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिरें, जो अभी तक नहीं गिरी हैं, कल भी $105 के ऊपर ब्रेंट था, तो अगर जब वो गिरेंगी उसी की तवक्को है और उसी से हमारे लिए भी आसानियाँ होंगी और यकीनन हम आवाम को भी इसको पास ऑन कर सकेंगे। ठीक, अच्छा, जो एक ये भी एक बात कही जा रही थी और हकीकत भी इसमें कि IMF की डील होते ही, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या हमारे दोस्त ममालिक हो, उनसे हमें इमदाद, कर्ज़ या उनकी इन्वेस्टमेंट मिलना हमें शुरू हो जाएगी। तो अभी तक खातिर ख्वाह इसमें कोई हमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। सऊदी अरब से $1 अरब के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, कुवैत से $3 अरब के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, लेकिन तफसीलात हमारे सामने नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में जो हमारी मुश्किलात हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, मुश्किलात तो हमारी हल होनी शुरू हो गई आज से, ठीक है ना। आप सैलाब को एक तरफ रख दें फ़िलहाल, जो इस IMF ट्रांच के रिलीज़ होने से एक मुस्बत एहसास जन्म ले रहा है मार्केट में, वो हमारे सामने है। देखिए, ये जो हमारे दोस्तों ने मुआहदे किए हमसे और उन सब को उस मेयार पे जांचा गया जो IMF का मेयार है, जिससे वो अपने आप को मुतमईन करता है कि क्या वाकई ये जो इमदाद या मदद की बात की जा रही है वो एक मजबूत वादा है। तो वो सब उन लोगों ने वो पर्चे शाया किए हैं और मेमोरेंडम शाया किए हैं और वो IMF को पहुंचाए गए हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो फौरी तौर पर, अब जैसे ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी है सऊदी अरब की तरफ से, वो तो जारी हो जाएगी, उसके ऊपर शायद कागज़ भी जो है वो साइन हो जाए एक आध दिन के अंदर। ये जो इन्वेस्टमेंट्स की बात है कतर की तरफ से, इसमें जितनी जल्दी हम अपने आप को तैयार करेंगे उनको ये चीज़, अभी मैं देख रहा था फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा अभी वो बिल शायद सेनेट से नहीं पास हुआ है और वो पास हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो लोग यहाँ आएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट्स का फ़ैसला करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा वादा फ़र्दा है जो पूरा नहीं होगा। जल्दी हम पेशरफ्त देखेंगे इन मामलात के अंदर। ये जो नया कानून बनाया है उसमें लोगों को अंदेशे भी हैं, लेकिन जब आपने ये बड़े काम करने हैं और मुश्किल के अंदर हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो उस नुक्ता नज़र से इसको देखना चाहिए।
और अगर कोई इसमें ऐसी बात होगी तो अदालतें मौजूद हैं, वो भी इन चीज़ों पे नज़रसानी कर सकती हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए डॉक्टर साहब ज़रूरी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो हमारे पास नंबर हैं SPI के, वो ऑल टाइम हाई हैं 45%। फिर ये सैलाब की वजह से जो तबाही है, हमारे पास अजनास की कमी हो जाएगी, हमारे पास सब्जियों की कमी हो जाएगी, तो ये भी महंगाई से ही बढ़ेगी। महंगाई मज़ीद बढ़ेगी तो फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इतने आसान मामलात नहीं हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। जी, मैं आउट ऑफ द बॉक्स मसूद साहब सिर्फ उस सियाक़ व सबाक़ में कह रहा था कि जो बैरूनी वसाइल आपने दोस्तों से हासिल करने, उनकी शराइत के मुताबिक, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि पिछले 3 हफ्तों से 37%, 42% और 45% जो है इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है वीक ओवर लास्ट ईयर्स सेम वीक, जो बड़ा परेशान कुन है अपने इसी पस मंज़र में। लेकिन जब सैलाब को आप सामने रखते हैं तो आप तैयार हो जाएं इस बात के लिए कि आइंदा कुछ महीने हमें इन्फ्लेशन से तो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये कुदरती आफत है जिसका पूरे मुल्क को सामना करना है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो यही है कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल जो है वो नीचे आए। बड़ी तवक्को थी कि वो अब तक आ चुकनी चाहिए थी, उसको वो नहीं हो सकी है। लेकिन अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं जैसे जैसे जो मरकज़ी बैंक्स हैं मगरिब के अंदर वो तेज़ी के साथ अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, उनकी ज़रूरत ही ये है कि रिसेशन आए दुनिया के अंदर। और वो रिसेशन अगर आएगा तो हमारे लिए मतलब उस तकलीफ़ के अंदर एक आसानी होगी। और वो आसानी ये है कि क्योंकि हमारी तवानाई की सारी ज़रूरत तकरीबन जो है वो दरामदात पर मबनी है, तो वो कीमत कम होगी तो उससे हमें जो बचत होगी वो उससे कहीं ज़्यादा है जो हमारी एक्सपोर्ट्स को भी मुतासिर करेगी। क्योंकि जब दुनिया में मांग कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी उससे मनफी उनके ऊपर असरात पड़ेंगे। और डॉक्टर साहब, इन हालात में जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले सरमायाकारी की बात की और हुकूमत ने इस पर बड़ी अहम कानून साजी भी हालिया दिनों में की है, तो मगर जो मजमूई हालात हैं हमारे पास, पावर शॉर्टेज या पावर का महंगा होना, सैलाब की सूरत हाल, ये इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो हमारी कोशिश है कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी आए, उसमें आप कितना उसको क्या फोर्स ही कर रहे हैं आने वाले दिनों में इन तमाम हालात को देखते हुए? मसूद साहब, इस वक्त तो मेरे ख़्याल में मखदूश तरीन हालात हैं बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से। इसमें मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह के सौदे हो सकते हैं जैसा कि खुसूसी तौर पर हम कर रहे हैं। और अब ये कानूनी फ्रेमवर्क बन गया है, अगर दूसरी हुकूमतें भी आगे बढ़ें और वो चाहें कि हमारे असासे हासिल करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और ये जो है इसमें एहतमाल रख रहे हैं इस बात का, जैसे वज़ीर एविएशन ने और रेलवे ने ये बड़ा सरीहन बयान किया है कि ये बेच नहीं रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स को, बल्कि उसमें सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं। सरमायाकारी की हमको ज़रूरत है और यकीनन एक हिस्सा उनका होगा और वो कलीदी जो फ़ैसले होंगे उनके अंदर भी वो शरीक होंगे। तो ऐसी दूसरी जगह से भी सरमायाकारी आ सकती है। तो आपके पास इस वक्त दुनिया में देने के लिए चंद असासे रह गए हैं, वो पावर सेक्टर में हैं, कुछ एविएशन में है, रेलवे है। आप इन चीज़ों में किसी किस्म की आप कोताही ना करें इस वक्त, और जो इनको लेने के लिए तैयार हो उनके लिए इसमें आसानियां पैदा करें। डॉक्टर साहब, IMF ने 2 चीज़ों पे बहुत ज़ोर दिया है, एक तो तवानाई के नुकसान को कम करना, दूसरा कि टैक्स आमदनी बढ़ाना। अभी तवानाई वाला जो मामला है इस पर तो हर हुकूमत और आने वाला हर वज़ीर ख़जाना उसकी कोशिश होती है कि वो इस पर अच्छी कारकर्दगी जो है कौम के सामने पेश करे। मिफ्ता इस्माइल साहब भी पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे और वो भी बड़े दावे करते रहे। तो ये तवानाई का जो मसला है इस पर ख़ास तौर पर कैसे काबू पाया जा सकेगा इन हालात में? मसूद साहब, ये मसला जो है, मैं सारी ज़िंदगी मेरी गुज़र गई इस चीज़ को देखते हुए, और मैं बहुत अरसे से इस बात का कायल हूँ और इसके लिए कोशिश करता रहा हूँ कि ये जो इदारे हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंदर नहीं चल सकते। इनको
प्राइवेटाइज करें आप, मतलब और प्राइवेटाइज इस अंदाज में कर दें कि इसमें क्योंकि ये इतने बड़े बड़े इदारे हैं, आप इसमें सूबों को हिस्सादार बना लें, मकामी हुकूमतों को हिस्सादार बना लें और इसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आ जाएं। यानी कि ये मॉडल जो है वो भारत में भी है। ये जो बॉम्बे की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है या दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये सब प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। तो हमें भी इस मुल्क के अंदर इस चीज़ को करना चाहिए। ये इतने अच्छे कारोबारी इदारे हैं लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर ये नहीं चल सकते। और साथ में हमें एक दफ़ा तहैया कर लेना चाहिए कि देखें, जो जिस चीज़ की लागत है उसका इस्तेमाल करने वाला उस खिदमत की लागत को जो है अदा करे। जब तक कॉस्ट रिकवरी नहीं होगी मसूद साहब, आप ये यानी आपके पास, आप देखिए इस साल जो आपका यानी कि जो साल ख़त्म हुआ है उसमें 1600 अरब रुपए की सब्सिडी, जो कि सिर्फ बमुश्किल 750 अरब की आपने बजट की हुई थी, यानी 1000 अरब रुपए ज़ायद आपने सब्सिडी अदा की है। ये सारा का सारा इसी में गया है। और ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये गुनाह बेलज़्ज़त है कि जनाब आप इतनी सब्सिडी देते हैं, आप किसी आम सारिफ से पूछ ले कि अगर वो ये समझता हो कि उसे कोई सब्सिडी मिल रही है, वो तो हर दफ़ा आपने देखा बिजली के बिलों के ऊपर इस दफ़ा क्या रद्द अमल लोगों का सामने आया, ये तो कभी मैंने देखा नहीं है इस तरीके से। तो ये अजीब और गरीब जो है सूरत हाल से हम दो चार हैं। हुकूमत एक ऐसी खिदमत जो गली कूचे से वाबस्ता है उसे इस्लामाबाद से नहीं चला सकती, मुझे कोई शुबा नहीं है। तो इन्हें जितनी जल्दी हो आप इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर दें, वो इसको बखूबी चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। IMF से प्रोग्राम बहाल हो गया लेकिन साथ ही साथ सैलाब आ गया, जिसके बाद अब महंगाई का तूफ़ान सामने खड़ा हुआ है। फसलें तबाह हो गई हैं, कपास की फसलें तबाह हुई हैं, चावल की फसलें तबाह हुई हैं, सब्जियों की फसलें तबाह हो गई हैं। और अब हुकूमत की कोशिश ये है कि इन तमाम चीज़ों को, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाए, तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खौफनाक सैलाब के बाद महंगाई के सैलाब ने सर उठाना शुरू कर दिया है। सैलाबी रेलों में कई लाख एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर काश्त इलाके और बागात ज़ेर आब आ गए हैं। ज़रई नुकसानात के इब्तदाई असरात सब्जियों की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आ चुके हैं। इस वक्त कराची, लाहौर समेत मुल्क के बड़े शहरों में टमाटर की कीमत 450 रुपए किलो से तजावज़ कर चुकी है। प्याज की औसत कीमत 160 रुपए से 200 रुपए हो गई है, जबकि आलू पिछले हफ्ते 60 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत 100 रुपए किलो से बढ़ चुकी है। खीरा, पालक, भिंडी, गोभी, तोरई, लौकी और मुख्तलिफ फलों की कीमतें भी गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से अब बाहर हो चुकी हैं। लहसुन और अदरक और धनिया पुदीने का काल पड़ गया है। इस वक्त कराची के बाज़ारों में टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं और आवाम को इस सैलाबी महंगाई से कितनी परेशानी का सामना, इस बारे में आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद की रिपोर्ट। सैलाब से तबाही के असरात सब्जी मंडियों तक पहुंचने लगे। मुल्क में 70 से 80% हिस्से पर फसलें तबाह हो गईं। सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सरकारी गोदामों और लोगों के घरों में अपने इस्तेमाल के लिए रखी गई गंदुम खराब हो गई है। चावल और कपास समेत मौसम गर्मा की फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद मानसून के इख्तिताम पर मुल्क में खुराक के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। बलूचिस्तान, सिंध और सवात में सैलाब से टमाटर और प्याज समेत कई फसलें खराब हुईं। अगस्त और सितंबर के महीने इन फसलों की कटाई और तरसील के होते हैं। हालिया दिनों में बलूचिस्तान और सिंध के सरहदी अजला जैकबाबाद और नसीराबाद से प्याज और टमाटर की सप्लाई शुरू होनी थी, जबकि सिंध के अजला ठट्टा, बदीन और टंडो अलायार में इस साल टमाटर की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन ये फसल सैलाब में बह गई। सवात और इसके गिरदोनवा के इलाकों में प्याज की काश्त मुकम्मल हो चुकी है और इसकी कटाई माह अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, लेकिन सैलाब ने सवात में भी हर चीज़ मलियामेट कर दी। बलूचिस्तान और सिंध से तरसील रुकने के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक सवात के इलाके से भी अब प्याज और टमाटर आने का इम्कान बाकी नहीं रहा और आइंदा 3 माह के दौरान प्याज और टमाटर की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। मंडियों में सप्लाई कम होने के बायस कराची की मार्केट में टमाटर और प्याज की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। 1 किलो टमाटर की कीमत 500 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि प्याज 200 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है।
इसी तरह लहसुन, अदरक, आलू, धनिया, पुदीना और लीमू की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले भिंडी बिकती थी ये 100 रुपए किलो, आज ये 240 रुपए किलो बिक रही है भिंडी। 80 रुपए पाव, 60 रुपए पाव बिक रही है। सैलाब से सारी सब्जियां बेच चुकी है, जो बचा कुचा माल है वो आ रहा है मार्केटों में, वो महंगा बिक रहा है। एक 20 रुपए किलो की प्याज, 30 रुपए किलो की प्याज आज 150 रुपए किलो है। सब्जी की कीमतों में इतना फर्क आया कि हम भिंडी 100 रुपए किलो बेचते थे, आज ये भिंडी 12,000 रुपए मन मंडी में बिक गई है, 300 रुपए किलो। माल ही नहीं मिले, माल मिले तो हम बेचे ना। महंगाई इतनी है कि कम 160-200 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है, जो पहले 100 रुपए किलो थी अब 250 रुपए किलो है। माल आ रहा है तो पानी का भी का सारा दागी माल आ रहा है। पहले यही मिर्ची 80 रुपए किलो थी, अब 150 रुपए किलो है। महंगाई के हमारे आवाम के लिए सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। 300 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, कुछ ले नहीं सकते भैया। 1000 का नोट लेके आते सब्जी पूरी नहीं होती। सब्जी में तो कोई किल्लत नहीं आ रही, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। आलू है अगर 50 रुपए मिल रहा है तो वो 80 रुपए जा रहा है। टमाटर थका हुआ मिल रहा है 200 रुपए, अच्छा वाला मिल रहा है 400 रुपए। प्याज बहुत महंगी हो गई है 200 रुपए, क्या करे भाई, गरीब इंसान तो खा भी नहीं सकता है। प्याज 70-80 रुपए किलो थी, वो 200 रुपए 150 रुपए किलो मिल रही है। 30 रुपए 40 रुपए किलो टमाटर, अब 200 रुपए कौन टमाटर लेगा? 200 रुपए किलो प्याज कौन लेगा? अब देखो ना, 20 रुपए की गड्डी थी 30 रुपए की 200 रुपए किलो बिक रही है पालक की गड्डी। टमाटर देख लें 300, 200, 300 से कम नहीं है। प्याज 150, 200, यहाँ जो 40 रुपए पाव थी वो 80 रुपए, तो डबल का फर्क हो गया है। डबल से भी तिबल हो गए समझ लें। 80 रुपए पाव कल मैंने मंगवाए टमाटर। एक हाउस वाइफ लेती थी प्याज एक हफ्ते के लिए 2 किलो या 5 किलो, अब सोच के लेना पड़ता है कि 1 पाव ली जाए या आधा किलो ली जाए। ज़राई माहिरीन के मुताबिक गैर मामूली सैलाब की वजह से जहां ज़राई अजनास की किल्लत हो सकती है, वहीं नई फसल की बुआई में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। ताजर बरादरी का कहना है कि मज़ीद बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान और ईरान से प्याज इंपोर्ट करने की इजाज़त देकर टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, जिस पर हुकूमत ने फौरी तौर पर इंडिया समेत हमसाया ममालिक से सब्जियाँ दरामद करने का फ़ैसला कर लिया है। इस वक्त तुर्खम बॉर्डर के ज़रिए अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की सप्लाई हो रही है, मगर वो गैर मेयारी बताई जा रही है और हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात से बहुत कम है। खबरों के मुताबिक वजारत फूड सिक्योरिटी ने टमाटर प्याज की तलब को पूरा करने और कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की बड़ी पैमाने पर दरामद का फैसला किया है। शहबाज हुकूमत वाहगा बॉर्डर के जरिए प्याज, टमाटर और ज़रूरी सब्जियां और खाने पीने की अशिया मंगवाने के ऑप्शन पर भी गौर कर रही है। मुल्क की ज़राई बहरान का एक तशवीशनाक पहलू ये भी है कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी से दूरी की वजह से हमारी ज़राई शोबे की पैदावारी सलाहियत पहले ही घट रही थी। अब सैलाबी कैफियत में आइंदा सीज़न की फसलों, नई फसलों की बवाई भी नामुमकिन नज़र आ रही है, क्योंकि खेत खलियान की ज़राई अराजी दरियाओं और तालाबों में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त कपास, चावल और दीगर अजनास की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। टमाटर, प्याज, आलू और मिर्चों समेत सब्जी तरकारियों की काश्त के बड़े बड़े रकबे मलिया मीट हो गए हैं, जबकि फलों से लदे बागात को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना तो बहुत मुश्किल है, ताहम यह अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि इस सूरत हाल से मुल्क ग़िज़ाई बहरान में मुब्तला हो सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से पहले ही मंडियों में सब्जियों और फलों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इस महीने मुल्क में पहले ही महंगाई की शरह 44.5% हो चुकी है। इस पर सैलाबी महंगाई और गिरा फरोशी ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है, जबकि सरकारी गिरफ्त न होने की वजह से आड़ती माफिया और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने भी अंधेर नगरी मचा रखी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई का फ़र्क बरकरार रहा तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, साबिक मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब वक्त देने के लिए। सर, आप समेत तमाम माहिरीन जो हैं उनका मानना यह है कि कपास की फसल 90% से ज़्यादा तबाह हो चुकी है, चावल की फसल तबाह हो चुकी है, सब्जियां, तरकारियां और जितनी फसलें तबाह हो चुकी हैं। चलें, कपास तो हमें समझ में आता है कि जब बारिश हो जाए उसकी फसल के ऊपर तो फिर उसका बचना मुश्किल होता है, लेकिन ये बाकी जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो आदाद शुमार आ रहे हैं, ये किस बुनियाद पर सामने आ रहे हैं? अभी तो सैलाबी कैफियत है मुल्क के अंदर। देखिए, इसमें मेन जो नुकसान होता है ज़राअत का वो दरिया के फ्लड से नहीं होता। दरिया के अंदर, दरिया नॉर्मल 95% अपने जो बाहर के किनारे हैं वो उनसे बाहर नहीं निकलता, जो दूर बंद बने होते हैं उनसे बाहर नहीं होता, और उसके अंदर कच्ची इस्टेब्लिशमेंट होती है, आरजी इस्टेब्लिशमेंट होती है, लो वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, वहाँ नुकसान इतना नहीं होता। बेसिक नुकसान होता है हमेशा, जितना भी हिस्ट्री में आप देखें तो हैवी रेन्स का नुकसान होता है, और हैवी रेन का नुकसान वहाँ होता है जहाँ पे बारिशें ना, जहाँ पे ड्रेनेज ना हो।
इस वक्त जो आपने बात की काटन की, काटन 90% तबाह नहीं हुई। काटन पंजाब की तबाह हुई है 15% और काटन सिंध की तबाह हुई है 90% से ज़्यादा हो गई है। और काटन जो बलूचिस्तान की तबाह हुई है वो आलमोस्ट को 60 to 65% काटन बलूचिस्तान की तबाह हुई है। ये है इसकी सिचुएशन। अब सिंध में जो काटन तबाह हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध में जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न और यू कैन से नवाबशाह डिवीज़न और सखर डिवीज़न, ये 4 डिवीज़न है जहाँ पे काटन होती है। इन चारों डिवीज़न्स में आप जो सिस्टम है इसका ड्रेनेज का सिंध का वो है LBORD और RBOD, यानी राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन और लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन जो थी चलती थी आपकी कश्मीर से और दूसरा चलती थी ये यू कैन से कि ओस्ता मोहम्मद से। ये पानी लेके जाती थी मंचर झील में और मंचर झील से आगे जाता था समुंदर में, वो बंद हो गई, उस पर कब्जे हो गए, वो सारी की सारी ड्रेन बंद हो गई। और फिर ये जो आपका लेके सखर डिवीज़न की जो ड्रेन थी ये पुराना ओल्ड हाकड़ा भी से कहते थे और सरसूती दरिया भी, सरसूती भी कहते थे इसको संस्कृत में। ये पुराना और ये जाता था शकूर झील में, शकूर लेक में। अब जो हमें सामना है वो सब्जियों की किल्लत का है, तो ये जो सब्जियों की किल्लत है इसके लिए हुकूमत की कोशिश है कि वो अफ़गानिस्तान से, ईरान से, और ये भी हुकूमत सोच है कि वाघा बॉर्डर के ज़रिए इंपोर्ट कर लिया जाए। तो ये काफ़ी होंगी ये कोशिशें अगर ममालिक से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और आपको क्या लगता है कि सब्जियों की किल्लत यानी कि कीमतों में इजाफा जो हमें नज़र आ रहा है ये कितने अरसे बरकरार रहेगा? मसूद साहब, आपका ना प्रोग्राम बड़ा प्राइम टाइम प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ी सी मैं इसमें वजाहत करूं कि दुनिया में 80% से ज़्यादा खुराक लोकल पैदा की जाती है। मसलन जो चावल है, चावल की सिर्फ 9% ट्रेड है, 91% चावल जहाँ पैदा होता है वहाँ खाया जाता है। इसी तरह जो आपकी गंदम है, गंदम की जो एक्सपोर्ट टोटल ट्रेड को 16 या 17% है। इस तरह मकई की टोटल ट्रेड जो है वो 15% है। सो ट्रेड बड़ी थोड़ी होती है। जब भी किसी बड़ी आबादी का मुल्क जो है उसकी कोई चीज़ किल्लत हो जाती है तो पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। और स्पेशली पेरिशेबल में तो ये कंसेप्ट नहीं है कि आप इंपोर्ट करके खा सकते हैं या लिहाजा इंपोर्ट करके आपको कर सकते हैं, कमी पूरी कर सकते हैं। हम 23 करोड़ लोग हैं, इस साल 23 करोड़ हो जाएंगे, अभी 22 करोड़ कुछ है, तो इस साल के अंदर 23 करोड़ हम होने जा रहे हैं। 23 करोड़ की आबादी के मुल्क में टोटल आपको प्याज ख़त्म हो जाए, टमाटर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये फसल जो इस वक्त फसल है ये फसल होती है टोटल लाड़काना में और यू कैन से कि सांगड़ में, सांगड़, बदीन, ये लोअर सिंध की और अपर सिंध में जो बलूचिस्तान का कुछ एरिया है, औस्ता मोहम्मद का, और ये जो एरिया है यू कैन से लाड़काना का, यहाँ प्याज होता है। ये सारी फसल तबाह हो गई। तकरीबन 1.5 लाख एकड़ फसल थी, 1.5 लाख की मर्च थी, यहाँ पे चिल्लीज थी, और तकरीबन 1 लाख एकड़ की थी आपकी यू कैन से टमाटर, ये सारे तबाह हो गए। लिहाजा इस अफगानिस्तान हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, ना आप कह लें कि ईरान कर सकता है, हो सकता है इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान सारे मिलकर पूरी कर लें। हम बड़ी नेशन है, बड़ी नेशन को आपने चीज़ें खुद पूरी करनी होती हैं। लिहाजा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी नालायकी हुई कि हमने चंद मिलियन डॉलर, मतलब $100 मिलियन से भी कम पैसे लगते हैं इन ड्रेनेज की सफाई का, ड्रेन की सफाई का या नई ड्रेन बनाने का, हमने वो नहीं लगाई और सिर्फ $12 अरब की एक्सपोर्ट कंप्रोमाइज़ कर ली, सिर्फ काटन की। $900 मिलियन की एक्सपोर्ट, $2 मिलियन की एक्सपोर्ट, क्या नाम है इसकी, 2 मिलियन टन कम पैदा होगी राइस, जो 2 मिलियन टन राइस कम पैदा होगी बनती है $900 मिलियन की। सो हम करने क्या जा रहे हैं कि हम छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना, यानी आप जो फरमा रहे हैं वो ये कि हम क्योंकि इतनी बड़ी कौम है हम इंपोर्ट से अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते और हमने एक बड़ी नालायकी की है, बिल्कुल ठीक। अब ये बताएं कि अब ये फसलें तो तबाह हो गई, अब अगली फसल के लिए ज़मीन उसी वक्त तैयार होगी जब यहाँ से पानी निकलेगा, तो ये क्या अंदाज़ा है कि कितने अरसे में ये पानी निकल जाएगा और अगली फसल के लिए हमारी ज़मीनें तैयार होंगी? देखें, ये जो यू कैन से कि ये राइट बैंक ड्रेन है, आरबीओडी में आउटफॉल ड्रेन जो है राइट बैंक की, वहाँ तो ड्रेन है ही कोई नहीं। लिहाजा ये तो ज़मीन को तरस आ जाए हम पे, हम सारा पानी पी जाए, अपने सीने के अंदर जज़ब कर ले, फिर हम करेंगे, वो 2 महीने 2.5 महीने लग जाएंगे। हाँ, यकीनन अगली फसल कंप्रोमाइज़ हो सकती है। चने की फसल यहाँ पे लगती है, यहाँ सब्जियाँ लगती हैं और यहाँ गंदम लगती है। चने कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, सब्जियाँ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, गंदम शायद लेट लग सके या ना लग सके। दूसरी बात आ रही है लेफ़्ट बैंक को। लेफ़्ट बैंक में एक बार को वर्ल्ड बैंक को शायद हम पे तरस आ गया, उन्होंने 87 में हमें एक कर्ज दिया था जिसकी बुनियाद पर लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन बनाई गई, उसकी कैपेसिटी
थोड़ी है, उसकी अगर कैपेसिटी होती तो ये सारी की सारी 4 मिलियन बेल हमारी गंदम काटन खराब ना होती। कैपेसिटी थोड़ी है, ये अंदाज़ा ये है कि 1 महीने के अंदर 25 दिन के अंदर अंदर ये पानी खींच लेगी। ये पानी खींच लेगी। यहाँ पे ये जो डिवीज़न है नवाबशाह का, डिवीज़न है आपका हैरपुर का और मीरपुर का और हैदराबाद का, ये टाइम पे गंदम लग जाएगी। सरसों नहीं लग सकेगी, सब्जियां नहीं लग सकेंगी, लेकिन गंदम टाइम पे लग जाएगी। ठीक। अच्छा, आपने जैसे फरमाया कि कपास के हवाले से आपने अर्ज किया कि पंजाब में 15% नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब है पंजाब में फसलों का नुकसान भी कम हुआ होगा। तो पंजाब कितना कैपेबल होगा बाकी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस वक्त? देखिए, पंजाब में असल मसला है जो कहते हैं अर्जेंट जो है, अर्जेंट जो है वो तो आपको फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी कि आप जैसे टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें। बाकी जो आगे गंदम है, गंदम में जो आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ, गंदम का सबसे बड़ा इशू है फास्फोरस खाद का महंगा होना या किसानों के लिए डीजल का महंगा होना। जब उनकी फसल ख़राब हो गई, ये पैदावार कम देगी, जो पार्शियल डैमेज हुई पैदावार कम देगी, जो पूरी डैमेज हो गई वहाँ पे किसान डीमोटिवेटेड है। उस डीमोटिवेटेड किसान को 300 रुपये का 250 रुपये का डीजल जलाना उसके लिए मुश्किल है, 15,000 रुपये की बोरी DAP की लेना उसके लिए मुश्किल है, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जिसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं, इनको मकान दें या ना दें, इनको खाद, बीज और डीजल, ये 3 चीज़ें दे दें, किसान अपने पल्ले, किसान उससे लेके गंदम बीजने के काबिल हो, खेत खाली हो जाएंगे। बीजने की कैपेसिटी है कि नहीं, ये लगेगा तकरीबन 23,000 रुपया। 23,000 रुपया फी एकड़ आप किसान को दे दें, गंदम टाइम पे लग जाएगी, अगर और पैदावार भी दे जाएगी। अगर वो 23,000 नहीं देते तो फिर इट्स ए क्वेश्चन मार्क कि गंदम लगती है या नहीं लगती और पैसे देती है कि नहीं देती। तो मैं हिसाब लगा रहा था कि जिन इलाकों में ज़्यादा खराबी हुई है, इन इलाकों के लोगों को, छोटे किसानों को अगर आप दे दें तो आपका तकरीबन को 70 अरब रुपया लगेगा। वो 70 अरब रुपया जो है वो आप कह लें कि आप शोशा में देते हैं, आप वैसे बांट देते हैं, या प्रॉपर एक जिसे कहते हैं एक कानूगोई या पटवार जो है वहां से रिकॉर्ड लेके आपका मशवरा हुकूमत सुन रही होगी और ये अच्छी तजवीज़ आपकी, आपका तजुर्बा है और आपकी तजवीज़ है यकीनन हुकूमत तक पहुँच गई होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया, सूरत हाल से आगाह किया। गुफ्तगू आप सुन रहे थे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।